عزیز صاحب چونکہ ایک غریب دوست وزیر اعظم ہیں اور ان کا جو غریب کے دل کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے. وہ احساس ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی پوری نظر ہوتی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ ہے ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ بھی اچھے تھے، لیکن ان کی اسپیشلائزیشن جو تھی وہ بزنس تھی یا ان کی کچھ اور تھی. خان صاحب جو ہے وہ تو ایک درد بھرا دل لے کر آئے ہیں اور وہ اسی کے تحت چل رہے ہیں. کیونکہ کوئی بھی آدمی جب یہ سوچ لیتا ہے اس کو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کے سامنے جانا ہے اور اسے بتانا ہے کہ میں زندگی میں کیا کر کے آیا ہوں، اب کوئی بھی بندہ جب اس سوچ کے تحت سوچنا شروع کر دیتا ہے تو وہ لارجر دین لائف تھنکنگ کے پروسیس میں چلا جاتا ہے. میری فیلنگ ایسی ہے جیسے خان صاحب جو ہے وہ اس لارجر دین لائف تھنکنگ کے پروسیس میں بہت عرصہ پہلے چلے گئے. یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب اب جو ہے اس کا ریفلیکشن ہے. اب وہ جو چاہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنے. یہی وہ ٹرک ہے جہاں پہ عمران خان نے بیٹھ کے لوگوں کو کھانا تقسیم کیا، اور اب بھی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں کہ یہاں آئے، بھوکا نہ سوئیں. اگر آپ کے پاس کھانا نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، تو یہ ٹرک آپ کے گھر کے قریب پہنچے گا. وہ اپنے دوسرے بچوں کے لیے لے کے بھی جا سکتا ہے، اور اس کے مطلب یہ ہے کہ 3-4 لوگوں کا اگر کھانا لے کے جا سکتا ہے تو اس کی جو ڈیلی کی جو بچت ہے وہ 500, 600, 700, 800 تک پہنچ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا دوست ٹیکا خان ثانی اور اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آپ نے مختلف چوکوں چوراہوں پہ ایک گاڑی چلتی دیکھی ہوگی، ایک فوڈ ٹرک جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے شروع کیا تھا آج سے 3-4 ماہ پہلے، اور اس کا عنوان رکھا تھا کوئی بھوکا نہ سوئے. یعنی ریاست مدینہ سے یہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ باقاعدہ طور پہ ایک مثال لی، اور اس کے بعد ٹرک کے ذریعے لوگوں کو کھانا ان کی دہلیز تک پہنچانے کا باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ اس عمل کا آغاز کیا. اور یہ وہ ٹرک ہے جس پر پرائم منسٹر کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور آپ ہاتھ دیکھیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بڑا احترام کر رہے ہیں اس تصویر میں، اور غریبوں کو ویلکم کر رہا ہے یہ ٹرک. وزیر اعظم عمران خان یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں کہ یہاں آئے، بھوکا نہ سوئیں. اگر آپ کے پاس کھانا نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں، تو یہ ٹرک آپ کے گھر کے قریب پہنچے گا، اور یہاں سے آپ لیں. عزت نفس بھی آپ کی برقرار رہے گی، اور پھر ڈبہ پیک کھانا ملے گا، چاہے چاول ہوں یا بریانی ہو، پلاؤ ہو یا پھر کوئی اور کھانا. بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ کھانا دیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان بیت المال اور پرائیویٹ فلاحی ادارے جو ہیں ان کے تعاون کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا، جو کہ اب تناور درخت بنتا جا رہا ہے. اور یقیناً وزیر اعظم نے جس کام کو ہاتھ ڈالا اس کو مکمل کر کے چھوڑا، اور اس منصوبے کو بھی ایک ٹرک سے یہ شروع کیا تھا، اور آج ماشاءاللہ 16 ٹرک جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو 12 ٹرک ہیں، اور اس میں 4 ٹرک کا آج اضافہ کیا گیا ہے. اس وقت پاکستان بیت المال کے MD ظہیر عباس کوکر صاحب بھی موجود ہیں، شاہد لون صاحب اللہ والے ٹرسٹ کے روح رواں اور بانی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تو بہت سارا کام کر رہے ہیں، مساجد بھی، سکولز بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے بھی. وزیر اعظم عمران خان کا یہ خواب، میں سب سے پہلے میں بیچ میں حائل نہیں ہوتا، میں جلد آپ کی بات کرواتا ہوں وزیر اعظم کے اگلے منصوبے کیا ہیں. پرائم منسٹر عمران خان سے آج جو ان کی بات ہوئی وہ کیا تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اگلا جو پلان ہے وہ کیا ہے. کیا یہ ٹرک صرف 16 رہیں گے یا دیگر شہروں تک پہنچیں گے؟ چونکہ لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی کھانا تو پہنچ گیا، ایک دن آیا دوسرے دن نہیں آیا، تو اب یہ 7 بڑے شہروں میں یہ ٹرک موجود ہوں گے، مختلف چوکوں میں، مختلف چوراہوں میں، مختلف گلی محلے تک، آپ کے گھروں کے قریب. ہاں، زیادہ وہ ایریا ہوگا جہاں زیادہ مستحق لوگ، میں غریب نہیں کہتا، مستحق ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان کو یہ کھانا وہاں قریب گھروں میں میسر آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ ویسے ہی غریبوں کے ساتھ دوستی اور رشتہ جو ہے اس پر بڑا مان کرتے ہیں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان غریب نواز اور غریب دوست ہیں. وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں غریبوں کی، جو مستحق لوگ، ضرورت مند لوگ، ان کی ضرورتیں پوری ہوں. جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں، لیکن مہنگائی تو پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے کووڈ کی وجہ سے، اور اللہ کرے جلد حل ہو. اس وقت میں MD بیت المال سے بات کرتا ہوں. ظہیر عباس صاحب، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا، وزیر اعظم سے آج آپ کی بات ہوئی، پلان کیا ہے؟ یہ کھانا کیسا کھانا ہوتا ہے؟ اس میں بکتا کہاں ہے؟ تقسیم کیسے ہوتا ہے؟
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अभी तफसील बता रहे थे, जो एहसास कोई भूखा ना सोए के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है वो 4 मज़ीद जो फूड व्हीकल्स हैं उनको ऑपरेशनल किया है। इससे पहले 12 जो थे वो ऑपरेशनल थे, आज 4 हो गए हैं। और ये पाकिस्तान के जो 3 अजला मेन जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, लाहौर में, गुजरांवाला में और मुल्तान में, इनको हमने ऑपरेशनल किया है। इसके साथ साथ अक्टूबर के एंड तक हमारा ये प्लान है कि हम इसको जो है पाकिस्तान के 30 मज़ीद जो हमारे शहर हैं वहाँ पर इनको ऑपरेशनल किया जाए। और उसमें पंजाब पाकिस्तान के जो शहर हैं जिसमें सिंध के पी के, पंजाब और बलूचिस्तान के और इवन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जो शहर वहाँ पर शामिल हैं। ये एक मुल्कगीर प्रोग्राम है और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी गरीब जो मेहनत कश लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो कि अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद वो मेहनत मजदूरी की तलाश में, ये उनकी मेहनत मजदूरी इंश्योर नहीं होती, उसकी तलाश में बाहर निकलते हैं कि कोई आएगा, कोई आके हमें यहाँ से हायर करेगा और हमें वो अपने घर में दिहाड़ी पे लेके जाएगा, तो फिर उसके बाद वो हमें पैसा जो है वो दिहाड़ी हमें मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब चूँकि एक गरीब दोस्त वज़ीर आज़म हैं और उनका जो गरीब के दिल के साथ उनका दिल धड़कता है, उसकी जो कोर जो इशू है उसका पेट है, उसका खाना है डेली का। और इस पर ना सिर्फ वो अपना खाना खा रहा होता है इस प्रोजेक्ट के तहत, बल्कि वो अपने दूसरे बच्चों के लिए लेके भी जा सकता है। और इसके मतलब ये है कि 3-4 लोगों का अगर खाना लेके जा सकता है तो उसकी जो डेली की जो बचत है वो 500, 600, 700, 800 तक पहुंच जाती है। और जो वो बचत करेगा वो अपने बूढ़े वालिदैन को दवाई लेके देगा, अपने बच्चों की फीस देगा, उनको पढ़ाएगा लिखाएगा। इस लिहाज से ये गुर्बत में कमी का एक वो एलिमेंट है जिसको हम अगर इंश्योर करते हैं पूरे पाकिस्तान में, और जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा उन्होंने इसकी डायरेक्शन दी है कि इसको हम ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे जहाँ पर हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनको उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो, उनको क्वालिटी का खाना दिया जाए, जो कि हम पैक्ड खाना जो है उसमें हमारे जो डोनर हजरात हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं अपनी जेब से, यहाँ पर लोगों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही विजन है कि जी पैसा जो है लोगों पर लगाया जाए, और उसी जो विजन को तकमील करते हुए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हमारे जो डोनर हजरात हैं वो हमारे साथ मिलकर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिस पर जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं वो पाकिस्तान बैतुलमाल बेयर करता है। जैसे जो फूड व्हीकल तैयार करना होता है इस पर तकरीबन 60 लाख रुपया खर्च आता है। फिर हमारी जो महकमाना जो तनख्वाहें हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, पेट्रोल है, वो हम अफोर्ड करते हैं। और खाना जो है वो हमें डोनर हजरात जैसे शाहिद साहब मेरे साथ खड़े हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट से, ये ऑलरेडी इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया हुआ है पाकिस्तान बैतुलमाल के लिए, और इनके ज़रिए से बहुत सारे जो मुस्तफ़ीद लोग हुए हैं जो हमारे यहाँ पर जो पनाहगाहें हैं वहाँ पर ये खाना हमें देते हैं, कराची में देते हैं। और ये पूरी फैमिली जो है ये इस तरह के जो है वो डोनेशंस दे रही हैं। इसी तरह और बहुत से डोनर ग्रुप्स हैं, डोनर हजरात हैं पूरे पाकिस्तान से जो हमें पाकिस्तान बैतुलमाल के प्लेटफॉर्म से गरीबों की खिदमत कर रहे होते हैं। मुझे याद है आपने क्या बात याद करवाई कि मेहनत कशों मजदूरों की बात की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो बादशाहों की महफिल में मजदूरों की बात की थी। याद होगा वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे तो वज़ीर आज़म ने उनसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक बात की कि सऊदी अरब में मेहनत कश मजदूर जो गए हैं और वहाँ पे जो जेलों में बंद हैं, खुदा के लिए उनको छोड़ दें। वो बहुत कसमपुरसी की हालत में उनका ख़ानदान यहाँ पे रहता है और छोटे छोटे जुर्म होते हैं उनके, और वो मेहनत मजदूरी करने कमाने के लिए गए होते हैं और उल्टा वो कैद में होते हैं। ज़बरदस्त एक आखिरी बात, फिर मैं शाहिद साहब की तरफ भी आऊँगा। मुझे बताइएगा प्लान क्या है, अगला प्लान क्या है? जी अगला प्लान यही है कि हम पाकिस्तान के सारे शहरों में हम जाएंगे, वहाँ पे जो हमारा जो इसका नेक्स्ट जो प्लान यही है कि हम पनाहगाहों को हम फ्यूचर में उसको स्प्रेड करेंगे, और जो हमारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं या हमारे जो कमर्शियल सिटीज़ हैं या जो हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं जहाँ पर मज़दूर जो हैं वो दूसरे शहरों से, अपने देहातों से, गोठों से आते हैं, आके वहाँ पर अपने दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए वहाँ पर उनको काम मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर लेते हैं, और उसके बाद उनको जो है वो रात गुजारने के लिए उनके पास कोई प्लेस नहीं होती, वो फुटपाथों पर सोते हैं, मुख्तलिफ बागात पर सोते हैं, वहाँ पर इनसिक्योर होते हैं। तो उसके लिए हमारा प्लान ये है कि हम पनाहगाहें जो हैं वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, और जो हमारे जो फूड व्हीकल्स हैं जैसे कोई भूखा ना सोए के हवाले से हमारा प्लान है कि हम पाकिस्तान के हर शहर में इसको स्प्रेड करें, और ताकि जो है वो हर शहर में जो हमारा पाकिस्तानी है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। देखिए हर शहर में ये ट्रक पहुंचेगा और हर शहर में आपको खाना मिलेगा। आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो ज़रूरतमंद है, जो खाना लेना चाहता है, ये कोई ज़कात नहीं, ये पाकिस्तान बैतुलमाल का मंसूबा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद लॉन साहब जो अल्लाह वाले ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। शाहिद साहब, आप क्या समझते हैं आज प्राइम मिनिस्टर से क्या बातें हुई?
नहीं, मेरी तो बहुत मुख्तसर बात हुई। हमने तो सिर्फ जो हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो हम पब्लिक और गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है उसके तहत जो काम करें उनका जिक्र हुआ उनसे, और वो बहुत खुश हुए, बहुत सराहा हमें, क्योंकि जब तनौल में 1 जनवरी को इस साल के पहले दिन जब उन्होंने ओपनिंग की थी तो वो हमारे पास था। फिर जब इन्होंने अपना खोकर साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने कराची विज़िट किया तो वहाँ भी मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे बड़े भाई और भाभी भी वहाँ सर्व कर रहे थे, जो उनको देख के बड़ी खुशी हुई। ये वैसे भी एक दफ़ा लाहौर में हमारे तरफ आए थे एक दफ़ा, तो हम राशन बांट रहे थे कोई 570 बेवाओं में, तो वहाँ मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी। तो हमारी, क्योंकि जितने भी लोग फिलैंथ्रोपिक वर्क कर रहे हैं उनका बैतुल माल के साथ किसी ना किसी तरह राब्ता होता ही है। हमने पहले बैतुल माल पंजाब के साथ तकरीबन 50,000 फैमिलीज़ को राशन दिया था और हमने को 15 शहर कवर किए थे उसमें। और फिर कोविड में हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके जो सबसे बड़ा सेंटर था एक्सपो सेंटर, जिसमें कोरोना फील्ड हॉस्पिटल बना था, वो और जितने क्वारंटाइन सेंटर थे वो सारे के सारे जो थे वो हम उनमें खाना देते थे। और जब भी कोई फ़्लाइट आ रही होती थी तो उसकी इत्तला हमें मिल जाती थी और हम वहाँ पर खाना देते थे। अभी भी वहाँ पर खाना हमारा जा रहा है। और इनके साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो पनाह गाहें, जो मॉडल पनाह गाहें हैं जहाँ पनाह गाह और वो है लंगर खाना साथ है, उससे अब एक स्टेप बढ़ गई है। और हमने इनके साथ एक पार्टनरशिप की है शुरू, जिसमें जो इनका ऑर्फनेज है जहाँ पर कोई 90 बच्चे हैं, उसका हमने राशन टेकअप किया है। क्योंकि हम खाने से ताल्लुक़ है तो हम ज़्यादातर फैसिलिटेट करते हैं खाने से, हमारी ड्यूटी अल्लाह ने खाने की तरफ लगाई हुई है। और अभी इनके साथ कुछ और प्रोजेक्ट्स। अच्छा शेख साहब, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि खाने की तरफ तो है, इस सोच को क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ आज भी आपका रब्ता रहा, गरीबों के बारे में ये सोच किसी हुक्मरान में देखी है आपने? देखिए, असल में मेरे पर्सनल व्यूज़ और मेरी ऑर्गेनाइजेशनल व्यूज़ जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो मेरे पर्सनल व्यू में मैं अपने दोस्तों से यही कहता हूँ कि कोई भी आदमी जब ये सोच लेता है कि उसको अपने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी के सामने जाना है और उसे बताना है कि मैं ज़िंदगी में क्या करके आया हूँ। अब कोई भी बंदा जब इस सोच के तहत सोचना शुरू कर देता है तो वो लार्जर दैन लाइफ थिंकिंग के प्रोसेस में चला जाता है। मेरी कई दोस्तों से इख्तलाफ है, वो उसे सियासी पस मंज़र में देखते हैं और मैं इसे बिल्कुल स्पिरिचुअल और फेथ के उसमें देखता हूँ। मेरी पर्सनल, दिस इज़ वेरी पर्सनल आप कह रहे राय है, इसे अल्लाह वली ट्रस्ट के साथ आप डील कीजिएगा। मुझे मेरी फीलिंग ऐसी है जैसे खान साहब जो है वो उस लार्जर दैन लाइफ थिंकिंग के प्रोसेस में बहुत अरसा पहले चले गए। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब जो है उसका रिफ्लेक्शन है। अब वो जो चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर स्टेट बने, जैसे आज भी इनके दोस्त इन्हें कह रहे थे कि आपको सीट पे, हॉट सीट पे बिठा दिया जिसपे खान साहब की रोज़ाना नज़र होती है, तो एक लिहाज से अच्छी है और एक लिहाज से मुश्किल है। तो एहसास एक ऐसा प्रोग्राम है जिसपे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की पूरी नज़र होती है। इससे पहले आप देखें कि डिफरेंट है, उनकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो भी अच्छे थे, लेकिन उनकी स्पेशलाइजेशन जो थी वो बिजनेस थी या उनकी कुछ और थी। खान साहब जो है वो तो एक दर्द भरा दिल लेकर आए हैं और वो उसी के तहत चल रहे हैं, वरना इतने पैसे कौन खर्च करेगा। ये है जज्बात। शाहिद लॉन साहब अल्लाह वाले ट्रस्ट चला रहे हैं और ये जज्बात आपने देखे वज़ीर आज़म इमरान खान के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, और ये बुनियादी तौर पर ऐसा काम है कि जो अल्लाह के नेक बंदे ही करते हैं। ज़रा सा आगे एक सिर्फ बारिश हो रही है, बारिश में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये व्यू देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, एहसास कोई भूखा ना सोए। ये वो ट्रक है जिसका आज भी इफ्तिताह किया गया, एहसास प्रोग्राम, कोई भूखा ना सोए, इसका एक मंसूबा। और ये ट्रक है जिसके अंदर आप देख सकते हैं खाना रखा जाता है और यहाँ डब्बे पैक। यही वो ट्रक है जहाँ पे इमरान खान ने बैठ के लोगों को खाना तकसीम किया, और अब भी उनकी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ऐसे कामों में गुजारूं जो फलाही मंसूबे हों। इस तरह ये 4 ट्रक, 1, 2, 3 और ये 4 ट्रक जो है ये अब सियालकोट, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, गुजरांवाला, लाहौर और मुल्तान में ये जाएंगे। 2 ट्रक लाहौर और 1 मुल्तान और 1 गुजरांवाला। बाकी अब सियालकोट और दूर हाफसाबाद, सांगला, इस तरह शेखुपुरा और बाकी बड़े जो शहर हैं उनमें भी ये चलेगा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कोयटा और पेशावर के मुख्तलिफ, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला, सिंध के मुख्तलिफ अजला, कराची में, हैदराबाद में ये कम अज़ कम 24 ट्रक नए बन रहे हैं जो अक्टूबर में आ जाएंगे, और अक्टूबर में मज़ीद शहरों में ये खाना जो है वो दस्तयाब होगा। टिक्का खान सानी को इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।